Should we start? Hello. You people are okay? Yes, Am I sir. audible? Pranam, sir. Pranam. Yes, All sir. are welcome to this class. And today we will study, as already the topic has been mentioned or circulated to all of you. And now we are going to start a very significant problem which has been encountered daily in clinics, the metritis problems. The metritis, we all have studied. You all studying the inflammation from pathology department. Whenever you are calling inflammation, you put itis, metritis. Metritis means inflammation of the uterus. You know, inflammation में यूट्रस में थ्री मस्कुलर लेयर होती है, 3 लेयर का होता है. अगर तीनों लेयर में इंफेक्शन हो जाए तो वही सिग्निफिकेंट और बड़ा उसमें एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, जिसमें मेट्राइटिस भी आ गया, इंडोमेट्राइटिस हो गया, पायोमेट्रा भी आ गया. इट इज ए कॉम्प्लेक्स. यू सी हियर द वर्ड द मेट्राइटिस कॉम्प्लेक्स. इट डील्स with metritis, endometritis and pyometra combined. Whenever any cattle or the bitch if suffering from the metritis, means the significant infection, it affect the uterus of the entire uterus musculatures. Maybe if it is limited to the endometrial part, so we can say it is endometritis. And if it is an old case, suppose a metritis become very old case, more than 2 months, then it is a case of pyometra. It become pyometra in case of cattle. So one of the most significant cause of infertility in cattle is the metritis complex of disease. It is a complex disease. इसमें क्या है, इसके जो इटियोलॉजी हैं, इसमें क्या है, कई मर्तबे जब हमारा कैटल्स पार्चुरेशन होता है, कोई भी काऊ का डिलीवरी हुआ, जिस समय पार्चुरेशन हुआ उस समय जो जेनेटेलिया है, जो ओपनिंग है, वेजाइना है, इट ओपन टू द इन्वायरमेंट. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन there is more probable chances of entry of the significant entry of the pathogenic organisms and opportunistic pathogens, all the organisms which are responsible for causing of the metritis, like E. coli and like E. coli, like pyogens. Escherichia coli हो गया. इसके बाद मान लिया जाए कि और कौन सा बैक्टीरिया होता है, सी पायोजेन, कॉर्निबैक्टीरियम पायोजेंस होते हैं, जो पायोजेनेस एंजाइम का सी पायोजेंस है ना. स्टेप्टोकोकस, स्टेफालोकोकस,
ये सब बैक्टीरिया है जो मोस्ट प्रोबेबली है ना ये मेट्राइटिस काउज करता है। और क्या है, मान लिया जाए किसी गाय में पार्चुरेशन हुआ, डिस्टोकिया हो गया, डिस्टोकिया हो गया, तो व्हेन वी आर हैंडलिंग डिस्टोकिया, many a times cow and their genitalia become traumatized, and that traumatic injury lead to infection, or it may start from vagina to the uterus. vagina में हुआ तो वेजिनाइटिस, सर्विक्स में हुआ तो सर्विसाइटिस, और यूट्रस में हुआ तो मेट्राइटिस। ठीक है, तो ये ट्रॉमेटाइज, मान लिया जाए रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन हो गया, कई मरतबे बहुत कॉमन है कि रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन होना वेरी कॉमन है, बहुत सारा कैटल में मिलता है। प्लासेंटा रिटेन हो गया, ये जो प्लासेंटा है इसको 8 घंटा, विद इन 8 आवर और 6 आवर ये इसको रिमूव हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली हैज टू बी ड्रॉप्ड आउट। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें क्या करना है, तो ये जो अगर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, इट इज ए सोर्स ऑफ इंफेक्शन, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विल बी देयर and that may cause metritis, so it is called as a metritis complex. तो ये इंडोमेट्राइटिस हो गया, अगर इंडोमेट्रियम लेयर में हो गया तो इंडोमेट्राइटिस हो गया, क्योंकि ये पता है 3 लेयर का बना हुआ है, जो इंटरनल म्यूकोसल लेयर है इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, म्यूकोसा से अटैच रहता है इंडोमेट्रियम, तो इंडोमेट्राइटिस हो गया। और ये अगर ज्यादा पुराना हो गया और इसमें ज्यादा पस बन गया तो इट बिकम pyometra. Pyometra क्या है? Pyometra is nothing but the accumulation of pus. During this pyometra, the animal may discharge mucopurulent, purely purulent discharge. Whenever animal will try to sit, animal will discharge a pus. It will be a yellow, white, or thick white, maybe flax. So these diseases are common ecological factor. Predisposed to one to another and to large extent common endometritis, common treatment है ये। अगर मान लिया जाए सपोज मेट्राइटिस हो गया, इंडोमेट्राइटिस हो गया और वेजिनाइटिस हो गया और सर्विसाइटिस हो गया, ये सभी का ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट्स है। ठीक है, इसके बाद है मेट्राइटिस इन्फेक्शन, अभी हम बताए ही हैं, वो चीज इसमें लिखा हुआ है ना। आप लोग को स्लाइड दिख रही है हमारी? हेलो, स्लाइड दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इन्फेक्शन एक्सटेंड टू डीपर लेयर ऑफ यूट्रस व्हिच मे इंक्लूड एक्सटेंशन थ्रू द सेरोसा, पेरीमेट्राइटिस, सेरोसा इनटू द ब्रॉड लिगामेंट। अगर ब्रॉड लिगामेंट में हो गया, अगर बाहरी यूट्रस के बाहर हो गया तो पेरीमेट्राइटिस कहेंगे। अगर ये जो यूट्रस जो है हमारा अटैच होता है 2 लिगामेंट से, है ना, ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, लेफ्ट राइट, ब्रॉड लिगामेंट पे सारे जेनेटेलिया जो अटैच हैंगिंग करता रहता है, ब्रॉड लिगामेंट इट गोज अप टू दी ओवरी तक रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको ब्रॉड लिगामेंट, जिसमें अगर ब्रॉड लिगामेंट में इंफेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तो पैरामेट्राइटिस, अगर यूट्रस के बाहर हो गया तो पेरीमेट्राइटिस, यूट्रस के अंदर हो गया तो इसको हम कहते हैं इंडोमेट्राइटिस। ठीक है, तो देयर आर सिस्टमेटिक साइन ऑफ इलनेस। इसमें क्या होता है, कई मरतबे एक तो लोकल इन्फेक्शन हुआ, लोकल वुंड क्रिएट किया, साथ में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसके जो टॉक्सिन है, इंडोटॉक्सिन, दैट में ट्रैवल टू द ब्लड वेसल्स होते हुए पूरा सिस्टम में चला जाता है, तो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन का जो है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका जो रिफ्लेक्ट है, इट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द इंटायर बॉडी। एनिमल विल हैव फीवर, it may have may will not be able to move very cool, very good, maybe lameness there, maybe bleeding। so सिस्टम जब सिस्टमेटिक इलनेस होगा तो पूरा सिस्टम में इलनेस हो जाएगा, पूरा इंटायर बॉडी इट विल बी इन्वॉल्व। so it sign will be vary from mild to very severe. This is a very emergency life threatening case that occur within a few days of coughing। हमेशा ये जो है काविंग के बाद ही होता है, क्योंकि ये पता है कि हमारा डिस्टोकिया, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, ऑल दिस complication occur during calving or after calving. So this metritis problem always occur after calving।
or it is also known as postpartum metritis. It is also known as what? Postpartum metritis. ठीक है, आगे है इंडोमेट्राइटिस. इंडोमेट्राइटिस तो अभी हम बताए हैं. इंडोमेट्राइटिस इंडोमेट्रियम लेयर में हो जाता है. इसमें 3 डिग्री का बनाया गया. इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिग्रीज. फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? इट विल बी देयर विल बी ल्यूकोसाइट्स will be some extent, will not be more. And in second degree, there will be leukocytes some more than the first degree. And third degree, there will be the complete pus, continuous pus will be discharged. In first degree, you will not be able to diagnose whether animal is having metritis or not. First degree में आपको clinically you cannot find, you cannot examine, you cannot diagnose that animal, particular animal is suffering from any metritis problem. In when animal is suffering from first degree. Second degree, there will be when you will milk out and you are squeezing the uterus while going to examine the uterus. जब स्क्यूज के जब वजाना में हाथ डाले, सॉरी रेक्टम में हाथ डाले एनस होते हुए, जैसे ही उसके यूट्रस को पकड़ेंगे और थोड़ा मिल्किंग करेंगे, स्क्यूजिंग करेंगे, तो पस निकलेगा उससे. तो ये पस जो है, अगर वो डिस्चार्ज में आ रहा है, फ्लैक आ रहा है, इसका मतलब ये सेकेंड डिग्री है. लेकिन व्हेन एनिमल automatically animal discharging all time pus whenever animal sit, and whether animal in heat or not, no matter, and whenever animal try to sit, there will be discharge. It is a pyometry. This is called the third degree of endometritis. Third degree of endometritis is also known as pyometra, while in case of which it is called pyometra complex. So infection is confined to endometrium or stratum spongiosum submucosa. Endometritis में affected cause so no symptom of sign of illness. जब सिम्टम नहीं दिखेगा, लेकिन जब सिम्टम बढ़ेगा, थर्ड डिग्री में जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा, तब यूट्रस उसका जो थिक हो जाएगा, उसके जो यूट्रस हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे, इंडोमेट्राइटिस हो जाएगा. फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में पता नहीं चलेगा. देयर विल नॉट बी एनी साइन that you can say that animal is having endometritis. Animal will may be clinically normal, but when it will be go to severe on second degree or third degree, it will be a problem. Clinical signs are confined to the presence of purulent materials. Purulent materials. Clinical endometritis, अगर जरा सा भी साइन आ गया, मान लिया जाए पस आ रहा है यूट्रस में डिस्चार्ज में, तो ये क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस के लिए, क्योंकि आप क्लिनिकली इसको देख रहे हैं, और द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट बट नो अबाउट पस इन साइन आल्सो डिस्चार्ज. म्यूकस ऑफ स्टमक विल बी क्लाउडी. तो कई मरतबे क्या होता है, एनिमल इज हैविंग ऑलरेडी इंडोमेट्राइटिस, मे बी फर्स्ट डिग्री, एनिमल मे कंसीव, एनिमल इज प्रेग्नेंट, बट देयर फ्यूचर of the pregnancy or the parturition, it's very vague. It may be, it may abort आगे जाकर के onward, may it inward. So ऐसा नहीं है कि अगर सर्विसाइटिस है, वेजिनाइटिस है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी. अगर वेजिनाइटिस भी है तो एनिमल विल बी प्रेग्नेंट. सर्विसाइटिस है तो प्रेग्नेंट. सेकेंड डिग्री ऑफ मेट्राइटिस इन द फर्स्ट डिग्री है, एनिमल विल बी प्रेग्नेंट, बट देयर पार्चुरेशन इज नो गारंटी. इट मे abort at the month of 7th month, 8th month of pregnancy. Animal may abort because of animal is having uterine infections. So clinical signs are confined to the presence of purulent materials. Mucus stress होगा. तो जो रिपीट ब्रीडिंग का केस है, ये बहुत मर्तबे ये इंडोमेट्राइटिस के वजह से भी होता है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री इंडोमेट्राइटिस होगा तो रिपीट करेगा एनिमल देयर साइकिल विल रिपीट. Repeatedly animal come into the stress, maybe more frequently at 8-day interval or the 10 days interval or 11-12 cycle range will be irregular. Sometimes animal will come in whole heat on 21st day, sometime it may be 25, sometime it may repeat on 35 days animal will come in heat. So this will be a irregular stress cycle. Whenever animal is having any uterine infection, there will be a irregular stress cycle. There will be no cycle. Say it is normally animal come into stress at every 21 days. You know it very well. On rectal examination, uterus may feel slightly large, heavy, thick walled.
The estrous cycle and period are usually normal in length, but in occasional cases, cycle may short to 8 to 12 days due to acute endometrial inflammation preventing development of normal CL. नॉर्मल सीएल का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम में इंडोटॉक्सिन जो जाके सीएल का लाइसिस करा देता है, एनिमल विल कम इन, तो एनिमल में इंफेक्शन होगा तो एनिमल रिपीट करे। ठीक है, आगे है पायोमेट्रा, 3rd डिग्री ऑफ इंडोमेट्राइटिस, क्रोनिक इंफेक्शन ऑफ यूटेरस एक्यूमुलेशन, ये तो हम बता दिए डेफिनेशन। स्ट्रम नहीं होगा। पायोमेट्रा में एनिमल हीट में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें पस रहेगा और सीएल प्रेजेंट रहेगा। जबकि 1st डिग्री में एनिमल विल कम हीट, 2nd डिग्री में एनिमल विल कम इन हीट, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी सीएल का लाइसिस हो जाता है। लेकिन पायोमेट्रा में सीएल का रिटेंशन हो जाएगा, सीएल परसिस्ट कर जाएगा और एनिमल विल हैव सीएल अलोंग विद पस, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोनिक फेज में रहता है। प्रोजेस्टेरोन इज अ सोर्स ऑफ इंफेक्शन। तो नो साइन ऑफ सिस्टमैटिक इन्फेक्शन, chronic infection of uterus with accumulation of purulent exudate in the uterine lumen. Infection may be confined to luminal layers, may extend up to deep within wall of the uterus. A retained corpus luteum is present with the failure of isthmus. The CL is not the CL of pregnancy in PPM that persists due to uterine infection. जो CL present होगा ये pregnancy का CL नहीं होगा, है ना। The CL is not the CL of pregnancy. Postpartum metritis में ये चीज नहीं होगा कि CL जो है वो प्रेग्नेंट का होगा। नॉर्मल साइक्लिकल CL होगा, लेकिन CL जो है लाइसिस नहीं हुआ होगा। इट विल बी प्रेजेंट, रिटेन कॉर्पस, परसिस्टेंस रहेगा। दिस इज एक्चुअली द कंसीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल पार्चुरेशन। जब भी एबनॉर्मल पार्चुरेशन होगा CL परसिस्ट कर जाएगा, जैसे RFM, रिटेन फीटल मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर बर्थ, ट्विन बर्थ, डिस्टोकिया, these all conditions lead to formation of the metritis or the endometritis. So prognosis is fair to good. Prognosis क्या है? Fair to good. This is the seldom static. Nearly all cases recover spontaneously within passage of time, sequential estrus period. जब तक 3rd डिग्री नहीं होगा, automatic it may be covered, it may be spontaneously cured, लेकिन it will take time. But it will take time for decreasing this problem, for treatment of this problem. You should create, you should do something that cure very fast. Otherwise, it will take time. One estrus cycle, if any animal has been missed, if farmer missed any estrus cycle, it costs too much. It affects the economy of the farmer. ऐसा माना गया, it has been calculated that if a farmer miss any heat, it may loss, there may be loss up to 5,000 per heat, because the fodders or the foods has been used for the procurement, for the maintaining of the animal. It's very costly. It may per estrus cycle, may if it's missed, may 5,000 minimum it will be the lost. So it is very, it affects the economy of the dairy farmer or the economic condition of the farmer, or it affects the economic condition of the country. So this is, so you see, this is the problem. You see here, this discharge is clear, it's transparent, while this is translucent discharge. All this endometritis, subclinical endometritis, has been diagnosed by Whiteside test. You know Whiteside test? आप व्हाइट साइड टेस्ट कैसे करते हैं? व्हाइट साइड में क्या करते हैं? 2 से 3 ml म्यूकस लेना है और 5% NOH में जो है उसमें हमको 5% NOH 2 से 3 ml उसमें डालना और बॉइल करना है। अब बॉइल करने के बाद कलर चेंज कर जाएगा, जितना प्योर होगा, जितना येलो होगा, उतना संभावना है कि इसमें इन्फेक्शन है। तो सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस पता करने का ये तरीका। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ये ऑर्गेनिज्म ही मिला है ज्यादातर मेट्राइटिस, ई कोलाई, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्लोकोकस, बैसिलस, कॉर्निबैक्टीरियम पायोजेनेस। ये है परसेंटेज ऑफ एनिमल्स एंड नॉर्मल इंडोमेट्रियम ये है। सब क्लिनिकल इंडोमेट्राइटिस में यू सी हियर परसेंटेज ऑफ एनिमल, ज्यादा मात्रा में सब क्लिनिकल लगभग ज्यादा होता है। नॉर्मल इंडोमेट्रियम और मेट्राइटिस का कंडीशन इतना होता है। तो ये चीजें हैं।
में डेथ पोस्टमार्टम है। 10 दिन के बाद जो है 0 डेज से पार्चुरेशन के बाद 10 दिन मेट्राइटिस हो जाएगा। 20 दिन से ज्यादा रहेगा तो ये एंडोमेट्राइटिस में बदल जाएगा। इस तरह मेट्राइटिस है, इंडोमेट्राइटिस है। जैसे जैसे टाइम जो है पास करेगा वैसे वैसे इसका जो है क्योर रेट देखो सब में जो सर्कुलेंट इंडोमेट्राइटिस ये घटता जा रहा है, ये इज डिक्रीजिंग क्योंकि सेल्फ क्योर भी हो जाता है। नॉर्मल इंडोमेट्रियम इस तरह से है। ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज ट्रीटमेंट? फर्स्ट डिग्री ऑफ मेट्राइटिस रहेगा तो 1 से 2% लुगल सॉल्यूशन जो है 100 ml मिला करके 1 ml इसका इन्फ्यूज कर देना है 5 दिन लगातार, 3 to 5 days इफ इट इज फर्स्ट डिग्री ऑफ मेट्राइटिस। फिर सेकेंड डिग्री में भी इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दी गई है 2 to 4% लुगल सॉल्यूशन